Hey guys, very welcome back to my channel Muskan Chaudhary's official, and today we are gonna start with the topic that is idea of Satyagraha, and it is episode 2 of nationalism in India, right? And we are gonna study about how Mahatma Gandhi returned to India from South Africa, and he fought for the racist regime apartheid there, and how he made the country don't differentiate on the basis of colors, caste and creeds. And in this paragraph, or you can say in this topic, we are gonna say that how Mahatma Gandhi in India and as well as in South Africa also fought for the people and their rights. So in a you can say in a non matlab, where he didn't use any violent method to do this. So let's start with this. So, what was that? Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. The question could be asked when he returned to returned to India from South Africa. That was in January 1915. As you know, he had came from South Africa where he had successfully fought. Fought for what? He came from South Africa where he had fought for, you can say here you can see, the racist regime with a novel method of mass agitation which he called Satyagraha. Yes, in Africa also he used his Hindi word that is for Satyagraha, and Satyagraha stands for passive resistance. Satyagraha is like no, it's not a physical force. Satyagraha does not say that we should go for a war or we should go for conflicts and violent methods to make the people united. That is not the method of Satyagraha he used for Satyagraha. That is a mass agitation, which means that lots of people came together to for their rights. So the idea of Satyagraha emphasized the power of truth and need to the search of truth. Yes, what was Satyagraha? This is the line. That idea of Satyagraha told it described that the power of truth. Satyagraha's power was that it shows the truth and need to search for truth. Means jo Satyagraha tha, it fought for truth and just for justice. So it suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. Yes, this is the main thing for which Satyagraha started. So what was that? Satyagraha means why he did Satyagraha for in South Africa as well as in India also, because इट सजेस्टेड सत्याग्रह सजेस्टेड दैट अगर जो हमारा कॉज है, अगर हमारा जिस मतलब के लिए हम लड़ रहे हैं वो सच्चा है, वो मतलब हिंसा के खिलाफ है, स्ट्रगल मतलब उस हमारा जो स्ट्रगल है, हम जो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रगल कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अगर हमारी हिंसा के खिलाफ है या फिर हम बोल सकते हैं हमारे न्याय के खिलाफ है, तो यू कैन से वो उस टाइम पर हमें जो है फिजिकल फोर्स, यानी कि फिजिकल फोर्स यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करा गया है, फिजिकल फोर्सेस हेयर द वॉर्स द कन्फ्लिक्ट्स। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारा जो हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं अगर वो सच्ची है और वो जस्टिस के लिए है, तो उसके लिए हमें फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है ओप्रेसर्स को हटाने के लिए या उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। विदाउट सीकिंग वेजिनेंस और बीइंग अग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। हियर क्या कह रहे हैं वो कि हम मतलब गुस्सा हुए या फिर हम मतलब उससे बहुत एग्रेसिव होकर या गुस्सा होकर एक सत्याग्रही जो है वो बिना गुस्सा हुए एक सत्याग्रही जो है वो जीत सकता है उस बैटल को नॉन वायलेंस के थ्रू, मतलब बिना वायलेंस किए वो उस बैटल को जीत सकता है अगर वो गुस्सा ना हो और मतलब ज़्यादा लोगों के साथ बुरा ना करे। ओके, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ ऑप्रेसर। और ये कैसे हो सकता है कि हम जो ऑप्रेसर है उससे अपील करना बंद कर दे या फिर उसके थोड़े वर्ड्स मानने स्टार्ट कर दे या थोड़ा बहुत उससे एडजस्ट करना स्टार्ट कर दे। पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर हैड टू बी परसुएडेड टू द ट्रूथ। पीपल इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू वायलेंस। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं साथ में वो लोग ऑप्रेसर्स को मिलाते हुए वो सभी लोग उन लोगों को ये देखना चाहिए
कि सच क्या है, और उनको ये नहीं है कि उनको बस फोर्स कर दो, वायलेंस मतलब वॉर करके या कन्फ्लिक्ट करके उनको बस कन्विंस कर दो या उनको फोर्स कर दो कि हाँ ये सच है तुम इसे सच मानो भले ही वो गलत हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेसर्स हैं, जो पीपल हैं, उन सबको खुद ही सच को समझना चाहिए और देखना चाहिए। By this struggle, truth was bound to ultimately a triumph. और इस स्ट्रगल से क्या हुआ? ट्राइम्फ मतलब होता है विक्ट्री यानी कि जीत। सो बाय दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल से वो अल्टीमेटली क्या है, ट्रूथ जो था अल्टीमेटली एक विक्ट्री ले लेता है, ठीक है। और कहते हैं ना हमेशा सच की ही जीत होती है, बिकॉज द ट्रूथ इज अ ट्राइम्फ। सो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये बिलीव करा था कि धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। यस, महात्मा गांधी इस चीज़ में बिलीव करते थे कि अगर जो धर्म है, धर्म मतलब नॉन वायलेंस का जो धर्म है, मतलब अहिंसा का जो धर्म है, वो पूरे इंडियंस को क्या कर सकता है, यूनाइट कर सकता है। एंड ऑब्वियसली अगर पूरी इंडियंस यूनाइट होगी देन वी कैन थ्रो आउट वी कैन डंप द ब्रिटिशर्स हु वर ऑप्रेसिंग देम, हु वर अगेंस्ट देम। Okay, now let us read. After arriving in India, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। इंडिया आते ही उन्होंने काफ़ी जगहों पर क्या कर दिया, सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में भी काफ़ी जो है बुरी हालत है एंड द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर द इंडियंस। सो इन 1916 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Yes, in 1916 में वो चंपारण गए। These are the lines where he is मतलब where he is telling that how he organized satyagraha in different states of India. Okay, so in 1916 he traveled to Champaran. In 1916 he traveled to Champaran. वो चंपारण गए 1916 में। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड देन व्हेन ही went to Champaran or where he went in 1916. then in 1916 he went to Champaran in Bihar and वहाँ पर जो peasants थे, जो farmers थे, वो struggle कर रहे थे प्लांटेशन सिस्टम, मतलब जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा वहाँ पर, और उन्होंने मतलब वहाँ पे जो ऑपरेस कर रहे थे उन प्लांटेशन सिस्टम को, उनके अगेंस्ट गए और उस प्लांटेशन सिस्टम जो उसको ऑपरेस करा था उसको हटाया। देन इन 1917, फिर अगले ही साल 1917 में उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कर दिया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे उन्होंने किसानों को सपोर्ट करा क्योंकि वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गई थी, मतलब वहाँ की जो फसलें थी वो ख़राब हो गई थी, और क्योंकि वहाँ पे एपिडेमिक था काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से पीजेंट्स वहाँ के जो थे वो रिवेन्यू नहीं दे सकते थे ब्रिटिशर्स को। तो वो जो थे पीजेंट्स डिमांड कर रहे थे कि उनकी रिवेन्यू जो लेते हैं वो उस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए उनको, या फिर उसको कम कर दिया जाए। सो इसके अगेंस्ट भी वो 1917 में गए थे। और 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए थे, वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उन्होंने मूवमेंट किया था अमंगस्ट, मतलब एक सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के साथ किया था 1918 में। ओके, नाउ आते हैं हम नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट। उसके बाद हमारा क्या आया, रॉलेट एक्ट आया, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि गांधी जी वहाँ मतलब महात्मा गांधी केम टू इंडिया एंड देन ही एस्टैब्लिश्ड वेरियस सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस स्टेट्स ऑफ द इंडिया एंड फॉट फॉर मोस्टली ही फॉट फॉर द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स हु वर पुअर, हु वर सफरिंग फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्शन, सफरिंग फ्रॉम द different crop failures etc. So he established satyagraha in different states of India. Now what was Rowlatt Act? Emboldened with this success, now in the states which were are further we read before, हमने जिनके बारे में पहले पढ़ा कि वहाँ पे उन्होंने जो सत्याग्रह स्टार्ट करा था वो सक्सेसफुली अच्छे से चल रहा था, मतलब वहाँ पे वो अच्छे से जो ब्रिटिशर्स थे ड्यूरिंग द मूवमेंट्स दे एग्रीड that yes you can give less revenue or whatever that was. So यहाँ पे क्या था कि अब उनकी सक्सेस हो रही थी थोड़ी थोड़ी। गांधी जी in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed Rowlatt. अभी तक गांधी जी क्या कर रहे थे, अभी तक गांधी जी जो थे it was just गांधी जो अभी थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स में हमारे जो थे हमारे वो कर रहे थे सत्याग्रह लॉन्च करते सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स में, पर अब उन्होंने सोचा कि वो
पूरे नेशन में एक सत्याग्रह जो है वो लॉन्च करेंगे, ओके, पूरे नेशन में। तो गांधी जी ने क्या किया, एक नेशन वाइड जैसे नेशन के लिए एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, जिसको जो प्रपोज रॉलेट एक्ट अगेंस्ट, अब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने पूरी नेशन में, पूरे इंडिया में, ये देखिए 1919 में, 1918 के बाद 1919 में उन्होंने पूरे इंडिया में एक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द एम्परर लेजिस्लेटिव। अब ये बताएंगे कि रॉलेट एक्ट था क्या। सो दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द एम्परर लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनियन पोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। It gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted a non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a battle on 6 April. ओके अब इसको समझते हैं उन्होंने क्या किया, कि जिस तरह से उन्होंने एक रॉलेट एक्ट स्टार्ट कर दिया था नेशन वाइड में, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, सॉरी सत्याग्रह स्टार्ट किया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, ये एक एक्ट था जो कि एम्परर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बना दिया बहुत ही जल्दबाजी में, जिसको बनाया बिना उनके जो अपोजिशन इंडियन मेंबर्स थे, लीडर्स थे, उनके बिना परमिशन के या उनको बिना बताए बस फटाफट बना दिया। और ये एक्ट क्या था, इस एक्ट ने जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उस टाइम पर, उसको इतनी इनॉर्मस पावर दे दी कि वो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पूरी इंडिया में हो रही है वो उसको रिप्रेस कर सकते थे। उनके पास ये परमिशन थी और उनके पास ये पावर थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको विदाउट ट्रायल, मतलब उनको क्या है कि उनको इस तरह से सिर्फ 2 साल के लिए जेल में डाल सकते या फिर उनको जेल से बाहर निकाल सकते थे। और मतलब they have an enormous power to do most of the things which were not in hand of, which should not be in hands of them. So उन्होंने उसका गलत यूज़ भी करा, और आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने अच्छा यूज़ किया है, पर उन्होंने मोस्टली उसका गलत यूज़ ही करा। तो महात्मा गांधी जो थे वो चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस उनके अगेंस्ट करा जा सके, ताकि जो ये जस्ट अनजस्ट लॉज बन रहे हैं, सो विच वुड स्टार्ट विद अ बाटल, और एक बाटल हुआ जो कि 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। नाउ हम देख लेते हैं बाटल का यहाँ पे मीनिंग क्या है। सो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। रैलीज, बाटल मतलब नाम दिया है कि 6 अप्रैल को जो कि स्टार्ट हुआ एक बाटल से। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, जो रैलीज थी वो अलग अलग सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करी गई। इस सत्याग्रह के टाइम पे रैलीज अलग अलग सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करी गई। वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए, रेलवे वर्कर्स भी चले गए, शॉप सारी क्लोज कर दी गई थी। और उसके बाद अलार्म बाय पॉपुलर अपसर्ग एंड द स्केयर दैट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्प्टेड। उन्होंने मतलब क्या किया कि जो रेलवे से टेलीग्राफ के साथ कम्युनिकेशन थी उसको बंद कर दिया। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन एज नेशनलिस्ट, और उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, अब थोड़ा मतलब क्लैम्प डाउन होंगी, ताकि जो है नेशनलिस्ट और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट कर रहे थे उनके मतलब थोड़ा सा उन पर झुकेगी। Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi। ठीक है, अब क्या हुआ कि लोकल लीडर्स जो थे वो अमृतसर से पिक करे गए थे एंड महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से मना कर दिया गया था। Now, on 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices, and railway stations. Martial law was imposed, and General Dyer took command। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो रैलीज ऑर्गेनाइज कर दी गई थी, लोग सब स्ट्राइक पे चले गए, कम्युनिकेशंस बंदी कर दी गई। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अमृतसर को कमांड दे दी, अमृतसर के जो जनरल डायर थे उनको कमांड दे दी और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया। ऑन 10 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 10 अप्रैल को अमृतसर की पुलिस ने क्या किया, वहाँ पर जो लोग आए थे उनके ऊपर पूरी मतलब फायर स्टार्ट कर दी, मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ क्या था कि मतलब जस्ट फायर कर रहे थे वो सबके ऊपर, बस वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, बैंक, सब कुछ जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, प्रोसेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, ऑन 13 अप्रैल इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ठीक है,
और 13 अप्रैल को जो था जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ वो आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे दिया हुआ है। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड, उस टाइम पर क्या था कि उस दिन 13 अप्रैल जो कि बैसाखी का दिन था, उस टाइम पर क्या हुआ कि बहुत मतलब काफ़ी जो भीड़ थी जलियांवाला बाग में गैदर हुई थी और वहाँ पे मेला वगैरह लगा हुआ था, तो काफ़ी लोग ऑलमोस्ट आए हुए थे। तो कुछ कुछ जो थे वो आए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए लोग, कुछ कुछ जो थे घूमने आए थे क्योंकि बैसाखी का मेला था, और ज़्यादातर जो लोग थे वो उस सिटी के आउटसाइड थे, मतलब अमृतसर के नहीं थे, वो बाहर से आए थे। कुछ विलेजर्स थे जिनको ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ थोड़ी ही देर में इम्पोज हो जाएगा। उसके बाद डायर एंटर द एरिया, जो जनरल डायर थे वो जलियांवाला बाग में आए, उन्होंने सारे एग्जिट्स को ब्लॉक कर दिया और उन्होंने क्या किया कि ओपन फायर कर दी क्राउड पर, मतलब जो भी है चाहे कोई भी बच्चा बूढ़ा उन पे ओपन फायर कर दी। और जो था द क्राउड किलिंग 100, जिसकी वजह से 100 से भी ऊपर लोग जो थे वो मारे गए थे। हिज ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर्ड लेटर ही वॉज टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रह अ फीलिंग ए टेरर एंड ऑ। इसका मतलब कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो डिक्लेयर करना चाहता था कि जो भी सत्याग्रही उनके अगेंस्ट जा रहे हैं उनके दिमाग में वो एक डर पैदा करना चाहता था, उनके दिमाग में डर बिठाना चाहता था कि अगर तुमने आगे और कुछ किया देन वी विल डू द सेम विद यू। तो उन्होंने ऐसा किया कि जिसकी वजह से काफ़ी सारे मासूम लोगों की जान चली गई। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जैसे ये न्यूज़ इंसिडेंट की न्यूज़ सभी जगह पर फैलने लगे, crowd took to the streets of northern towns. There were strikes, clashes with the police, attacks on government buildings. तो इसकी वजह से जो लोग थे उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी, क्लैशेस करने लगे, पुलिस के साथ लड़ने लगे और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करने लगे। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल विद द ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल। और उन्होंने क्या किया कि सभी जो भी पीपल उनके ऊपर ऐसा कर रहे थे उनके ऊपर उन्होंने जस्ट फायर करना स्टार्ट कर दिया, उनको टेरराइज करना स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रहीज वर फाउंड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, और वो मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो सोच रहे थे कि अब सत्याग्रहीज हैं वो अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ेंगे, ठीक है। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, वो ज़मीन मतलब ऐसा हुआ कि मतलब गवर्नमेंट, ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि सत्याग्रही जो थे जो उनको उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया, ज़मीन पर अपनी नाक रगड़ने के लिए फोर्स करा। फिर उसके बाद क्रॉल, उनको ज़मीन पर स्ट्रीट्स पर मतलब से क्रॉल करना होता है ना, जैसे रेंगना स्टार्ट कर दिया। एंड डू सलाम सैल्यूट टू ऑल द साहिब्स, पीपल वर flogged in villages, गुजरनवाला इन पंजाब एंड नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। और इस जगह को गुजरनवाला जो कि अब पाकिस्तान में, उस जगह को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, और इस वायलेंस स्प्रेड को देखकर महात्मा गांधी ने उस मूवमेंट को बंद कर दिया। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया था उसको बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत बुरी तरीके से लोग मारे जा रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिना कुछ सोचे कि वो भी उनकी गवर्नमेंट में आते, उन्होंने उनके ऊपर फायर ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से बहुत बुरा असर पड़ा। While the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it still limited mostly to cities and towns. भले ही रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह के अगेंस्ट, सत्याग्रह जो रॉलेट के अगेंस्ट था वो भले ही बहुत वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, बट स्टिल वो मोस्टली सिटीज़ और टाउन्स में हुआ, पूरे उतने कंट्री में नहीं हो पाया। महात्मा गांधी ने अब ऐसा सोचा कि उन्हें एक ऐसा मूवमेंट करना पड़ेगा जो पूरे इंडिया में चले, ठीक है। बट सर्टन सच मूवमेंट अब ऐसे साथ में ही वो किसी को ऐसे इस तरह से नहीं कर सकते। और पहली बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसके लिए अंदर आती थी, उनको सबसे बड़ी चीज़ ये चाहिए थी कि पूरे इंडिया के हिंदूज और मुस्लिम जब यूनाइट होंगे तभी जाकर हम एक बड़ा सा जो है सिस्टम या फिर एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन द वे ऑफ डूइंग ही फेल्ट वॉज टू टेक अप खिलाफत इशू, और इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने खिलाफत इशू को पिकअप करा। अब जो खिलाफत इशू है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अब कैसे उन्होंने नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट करा वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट साथ खड़े होकर उन्होंने एक नया मूवमेंट स्टार्ट करा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ तक अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, डू लाइक माई वीडियो, एंड soon I'm coming with its part 3, and this is quite long chapter but still interesting about our history, so we will soon complete this chapter. Thank you so much for watching my video. Bye.